Right, Bhavatosh, thank you very much for joining us on the broadcast, and earlier my colleague Ishika as well for getting us all those on-ground reactions. But the Supreme Court order has been welcomed by opposition leaders across all party lines. Now, with Congress labelling the move as a win for truth and democracy, Congress is now planning to write to Lok Sabha Speaker to reinstate Rahul Gandhi in Lok Sabha. Now, RJD has also called for Rahul Gandhi's immediate reinstatement as an MP. Now, Shiv Sena MP Aditya Thackeray too welcomed the move and echoed Raga's sentiment of not letting hate and vengeance politics win. Meanwhile, the BJP has said that the real judgment will be given by the people in 2024. उनकी सदस्यता पद खारिज करने की जो मुद्दा था, उसको रिवोक करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता पद पुनर्बार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं, उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और ये राहुल गांधी जी अगले तारीख ये साजिश के खिलाफ और ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंधी बनकर उतरेंगे। We are welcoming the verdict of the Supreme Court. It is a biggest relief for the democratic values of this country. Those who are fighting for this country, those who are fighting for the truth, their values will be protected. This is the message through this verdict. That I don't know. Speaker has to take a decision. Of course, entire country, entire world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country needs. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the Honorable Speaker with the copy of the judgment. मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि सत्य, साहस और न्याय की ही जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोहर लगा दिया कि जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ वो सर्वथा गलत था। डेमोक्रेसी को डिस्क्वालीफाई करने का ये जो दुष्प्रचार हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी करी है और कहा है कि निचली अदालतों ने 162 साल के इंडियन पीनल कोड के तहत जो 2 साल की सजा सुनाई वो गलत थी। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये न्यायालयों को मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होगी। मैं आशा करती हूँ कि राहुल जी दोबारा से सदन में पहुंचेंगे और शेर की तरह जैसे वो दहाड़ते हैं वो दहाड़ेंगे। सत्ता पक्ष के कायरों का पैरों के तले से जमीन खिसक जाना वाजिब है। पर वो तो उनको पार्लियामेंट निष्कासित करने का षड्यंत्र था। ये मैं कैसे कहूँ कि ये षड्यंत्र था उनका। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी, सबसे षड्यंत्र हो गया। और 1 साल पहले का केस जो था सूरत के अंदर, जो केस करने वाले रुकवाया था केस को हाईकोर्ट जाकर के, वापस उसको जिंदा किया। बात का मालूम है क्या क्या होगा। ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, ये ऑर्डर टिक नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा भाई कोई कारण नहीं दिए 2 साल की सजा क्यों दी भाई। ये पहला केस होगा जो कि डिफेमेशन में 2 साल की सजा हुई हो। इसके मतलब पीछे क्या है? इसके मतलब ये राजनीतिक कोई बात थी। तो जुडिशरी पे हमारे पूरा यकीन है। आज रोक लगी है, नीचे केस में चल रहा है, उसमें भी राहुल गांधी जी की जीत होगी और सच्चाई सदा जीतती है। So I just look at the Priyanka Gandhi's tweet. She's saying 3 things cannot be hidden. That is moon, the sun and the truth. So the truth has prevailed. Rahul ji always held that my name is Rahul Gandhi, not Rahul Savarkar. So I will never bend. And it's a welcome move, it's a welcome judgment. Apex Court has held that why a maximum punishment. If a day was less, a conviction of a day was less given to the Rahul Gandhi, then his disqualification wouldn't have happened. And hopefully good sense will prevail on the part of the Honorable Speaker of our Parliament, and we will be able to see him in the monsoon session. And again he will be raising the concerns of the unemployed youth, women, poor and marginalized. जजमेंट को पूरा आने और विस्तार से पढ़ने
के बाद ही कोई व्यापक टिप्पणी मैं करूँगा, लेकिन जो अभी आया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सत्य में जयते, सत्य की जीत अंत में होती ही है, अंत में, और न्याय ऐसा लगता है कि हुआ है। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन में अब राहुल गांधी जी हिस्सा लेंगे क्योंकि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। आपको लगता है कि चर्चा जो है दिलचस्प होगी उनकी वापसी से? देश की राजनीति दिलचस्प हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। कभी भी सबसे ज़्यादा 2 साल की सजा का प्रावधान है, किसी को भी 2 साल की सजा नहीं दी गई थी, लेकिन राहुल जी को सजा दी गई, जिसके चलते उनकी सदस्य की संसद की सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतिम राहत दी है। एक बहुत खुशी की बात है। इस देश में आज भी संविधान है, जनतंत्र जीवित है, लेकिन अगर संसद और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, सुप्रीम कोर्ट की डांट की कुछ अगर जायजा लेते हैं तो शायद अपनी बर्ताव में कुछ सुधार करेंगे। देखिए, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, लगातार हमने कहा था कि अतिरेक में वो सजा थी और इंटरप्रिटेशन की भी इश्यूज थे, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में भी आया। लेकिन बेहद खुशी है क्योंकि ये राहुल जी से संबंधित प्रयोग अगर सफल हो जाता तो ये अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में भी यही कोशिश करते। संसदीय लोकतंत्र में और अब तक के अपने इतिहास में मैंने किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं देखी थी और इसके बहुत दूर तक परिणाम होते हैं। मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से भी उनकी सदस्यता को फौरन बहाल किया। I think it is an appropriate order. If you see the judgment today, if you see the order today, it is very important that we have people who speak the truth coming back to the Lok Sabha. Politics of hate, politics of vengeance will not win in this country, and we support this order. नहीं, ठीक है, वो किसी कारण से इसको गुड मान सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो ये उनके ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया ही है कि उन्होंने गलती की है। और जो जिस प्रकार से आपने देखा ही कि लगातार प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का इन्होंने जो काम किया, उनके लिए अनर्गल जो बयानबाजी किया, 2019 के चुनाव के पहले जिस प्रकार से बगैर तथ्यों के उनको चोर कहा। और मैं समझता हूं कि भारत के पवित्र लोकतंत्र में इस प्रकार का कोई बड़ा नेता है जिस प्रकार का आचरण करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और भले ही न्यायालय से इन्हें कुछ राहत यहाँ के ऊपर मिल गई हो, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय जनता का होता है और 2024 के चुनाव में जनता इसको जरूर जवाब देगी। बहुत अच्छी बात है, अगर ये स्टे उनका हुआ है तो उनका स्वागत है और बड़ा आनंद आएगा उनके साथ दोबारा। जब भी वो रहते हैं तो एक बड़ा ऊर्जावान माहौल रहता है, उससे अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। तर्क वितर्क विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। Let's shift our focus now to break